اس کا سارا چہرہ دیکھیں پاکستان کے مدد سے ہو رہا ہے، اور جس کو فیلڈ مارشل کی دیکھیں بے مثال ملٹری ڈپلومیسی جس کو دنیا ایکنالج کری اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ایسی اور اچھی خبریں نکلیں گی اور پاکستان کی جو ہے عزت میں پورے ورلڈ کے گلوبل سطح پہ اس میں اضافہ ہوگا۔ بالکل انشاءاللہ۔ اچھا یہ بھی کہیے گا کہ یہ جو اعلان کیا گیا ہے اس کی ٹائمنگ ابھی بہت امپورٹنٹ ہے، ایسے وقت یہ بیان سامنے آنا جب فیلڈ مارشل سداسِ منیر خود وہاں پر موجود ہیں، یہ پاکستان کی سفارتی کوششوں کو مزید کس حد تک اجاگر کرتا ہے؟ سفارتی سطح پر پاکستان مزید کیسے اسے اجاگر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں آپ جب ٹرسٹ بلڈ کر سکتے ہیں تو دیکھیں پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے، اس وقت کوئی ایسا دنیا کا ملک نہیں ہے جو اس قسم کا رول پلے کر سکے، اور مختلف افواہیں تو آتی رہتی ہیں اور ہمارے جو حاسدین ہیں دشمن ہیں مختلف قسم کی ڈس انفارمیشن پھیلاتے رہتے ہیں، بٹ کل بڑا کلیئرلی امریکہ کی جو ہے پریس سیکرٹری نے کہا کہ اس وقت پاکستان واحد ملک ہے جس کا ہم اعتبار کر رہے ہیں، اور پاکستان واحد ملک ہے جس میں امریکہ اور ایران کے درمیان برج کا کردار ادا کر رہا ہے اور واحد میڈیٹر ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ملک نہیں ہے۔ اور ٹرمپ صاحب نے تو دیکھیں اپنے میڈیا کے لوگوں کو کہا کہ آپ پاکستان جانے کی تیاری کریں، تو میں دعا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ پاکستان کا جو عزت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس میں ہر آنے والے دن کے ساتھ اضافہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا مزید کون سے فوائد پاکستان کو مل سکتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب پاکستان کے لیے سفارتی سطح پر کیا مزید آسانیاں ہو سکتی ہیں، عالمی سطح پر کیا مزید آسانیاں ہو سکتی ہیں اس سارے معاملے میں جو پاکستان کا کردار رہا ہے، پاکستان کے لیے کیا پازیٹیو امپیکٹ آگے مزید آ سکتا ہے؟ دیکھیں جب اگر آپ امریکہ کی اور ایران کی صلح کرا دیتے ہیں اور یہ ایگریمنٹ یہاں پہ ہو جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے جیسے ٹرمپ سے آپ نے کہا کہ اگر ایگریمنٹ فائنل ہو گیا تو میں شاید خود اسلام آباد آ جاؤں، تو یہ پوری ورلڈ کی سٹیج پہ بے مثال پاکستان کی کامیابی ہوگی، اور اگر دنیا کی سول سپر پاور آپ کے ساتھ جڑ جاتی ہے، ساتھ ایران جیسا ملک دنیا کا دوسرا سب سے بڑا تیل پیداوار کا ملک ہے وہ آپ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، تو دیکھیں یہ پاکستان کی بے مثال ریجنل اور ورلڈ سٹیج پہ کامیابی ہوگی۔ سو یہ بھی کہے گا کہ اب کمرشل ایکٹیویٹیز کھول دی گئی ہیں جو کہ عرصے دراز سے یہاں پر پابندیوں کا شکار تھی، امریکی ناکہ بندی بھی یہاں پر موجود تھی، اب جیسے ہی اسے کھول دیا گیا ہے اس کے اعلان کے ساتھ ہی بہت ساری اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ تیل کی قیمتوں میں بھی کمی واقع ہوگی، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کمرشل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کس حد تک مزید پروان چڑھ سکتے ہیں آگے؟ دیکھیے اسٹریٹ آف ہرمز سے دنیا کا 20 سے 30% آئل ڈیلی بیسس پہ گزرتا ہے، ملینز آف بیرل یہاں سے ڈیلی گزرتے ہیں، اور دنیا کا سب سے بڑا یہ ایل این جی کا جو ہے ٹریڈ روٹ ہے، تو یہ کھلے گا تو جیسے آپ نے صرف ایران کے کھلنے ہی صحیح دیکھیں تیل کی قیمتیں نیچے آ جاتی ہیں، اور اسٹاک مارکیٹس وغیرہ جو ٹریڈنگ ہوتی ہے اس میں پازیٹیو ڈیولپمنٹ دیکھنے آتی ہے۔ پہلے جب اس پہ کھولنے کا اعلان کیا گیا تو 3 دنوں میں دنیا نے $3.6 ٹریلین کی اکانومی میں بہتری دیکھی گئی، تو دیکھیں جیسے ہی کھلے گا تو اس میں جو ہے امن کی خبریں بھی نکلیں گی اور اکنامیکلی بھی دنیا کی جو اس میں اچھی خبریں ہمیں سننے کو ملے گی۔ ٹھیک ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی معیشت پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ کیا پاکستان کو کوئی ایکسٹرا بینیفٹ مل سکتا ہے کمرشل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے ہی، یا پاکستان کی معیشت پر کیا اثرات آ سکتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان کی معیشت تو ویسے ہی دن بہ دن ترقی کر رہی ہے، اور پیچھے اگلے 8-9 مہینے سے ہمارا کرنٹ جو اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ پازیٹیو میں جا رہا ہے۔ پاکستان میں جو ریمیٹنس ہیں وہ ہر آنے والے مہینے کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں، پہلے کوئی $2.5 بلین کے قریب آتی تھی ہر مہینے، اب وہ $3.5 بلین کے قریب آ رہی ہیں۔ پاکستان کا تو ویسے ہی اکنامک ریوائول شروع ہو گیا ہے، اور جیسے یہ ٹریڈ کھل جاتا ہے آپ ایران کے ساتھ باقی گیس اور آئل بھی ڈیل کرتے ہیں، تو دیکھیں انشاءاللہ پاکستان کیا پورے ریجن جو ہے یہ ایک بہت بڑی اکنامک پراسپیرٹی اس کو دیکھنے کو ملے گی، اور بے شمار یہاں دیکھیں اس میں معاشی مواقع آئیں گے، چیپ ایکٹ فاسٹ ٹریک پہ چلا جائے گا، گوادر پورٹ ڈیولپ ہوگی، باقی پورٹس ڈیولپ ہوگی، یا نئے شہر بسیں گے، نئی انڈسٹری لگے گی، تو پاکستان کا اب اکنامیکلی ٹیک آف اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ بھی کہیے گا کہ یہ جو اوپننگ ہے کیا یہ لبنان جنگ بندی سے مشروط ہو سکتی ہے، یا یہ ٹیمپریری ہے یا پرماننٹ رہے گی اب، یا آنے والے دنوں میں اس میں کوئی تبدیلی بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اگر آپ نے اسٹیٹمنٹ غور سے سنی ہے تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب تک یہ لبنان میں جنگ بندی ہے تو اسی مدت کے لیے فی الحال انہوں نے یہ کھولا ہے۔ یہ جو روٹ کھلا ہے یہ بالکل انلمیٹڈ نہیں ہے، اس کو مشروط کیا گیا ہے کہ جب تک لبنان میں جنگ بندی کی ہے، تو بڑا اچھا کیا ہے انہوں نے اس کو لنک کیا ہے تاکہ جو اس چیز کا پریشر بھی رہے
और बॉल अमेरिका की कोर्ट में चली गई है कि आप इसको पॉजिटिवली कैसे देखते हैं और कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें वक्त दे रहे थे। नाज़रीन, अभी हमें ज्वाइन किया अहमद सईद निनाज़ साहब ने, उनसे इस बारे में बात करते हैं। अहमद सईद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ईरान ने आपने हरमुज़ खोलने का बाकायदा ऐलान कर दिया है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ वहाँ पर शुरू हो गई हैं और उसके मुस्बत नताइज भी सामने आ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस डेवलपमेंट को? देखिए, ये आपके चैनल की दोस्तों से पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को मुबारकबाद के एक ऐसी सेंसिटिविटी कि जिससे हम थर्ड वर्ल्ड वॉर से एक किस्म का टच करके उसके दहाने को वापस टच करके वापस हुए। ईरानियों ने बहुत बड़ा कदम उठाया कि अभी जो है वो उस तरह से कोई पीस एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने इस कदर बड़ा स्टेप लिया कि जिसकी सेंसिटिविटी है, ईगो की लेवल प्रेसिडेंट ट्रम्प के यहाँ बहुत बड़ी थी। और यही वजह है कि उनकी जैसे ही इनकी जानिब से अनाउंसमेंट हुई है कि अपना हरमुज़ को हमने खोल दिया, तो मेरे ख्याल में विद इन 10-15 मिनट्स प्रेसिडेंट ट्रम्प की जानिब से भी थैंक यू ईरान का जो है वो एक्स अकाउंट पे उनका मैसेज आ चुका है। तो लिहाजा दोनों फ्री कैन, इसका मतलब है कि इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल। दोनों फ्री कैन को भी मुबारक हो और एट द सेम टाइम हमारी जो डिप्लोमेटिक कोर है, हार्ड कोर जो हमारी सफारतकारी है वो, जिसमें कि हमारे मिलिट्री डिप्लोमेसी और पॉलिटिकल डिप्लोमेसी ने जिस तरह से काम किया है, मैं समझता हूँ ये केस स्टडी के तौर पर जितनी डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग या पढ़ाए जाने वाले स्कूल हैं या कॉलेजेस हैं वहाँ पर पढ़ाया जाएगा कि कैसे एक मिलिट्री लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप मिलकर जब दुनिया में एक रिलीज पैराडाइम नाफिज हो तो उसमें कैसे मिलकर अपने न सिर्फ अपने बल्कि दुनिया के और रीजन के जो है वो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को मीट कर सकते हैं बगैर किसी लालच के, प्योरली खुलूस के साथ। तो अब जो कहते हैं कि रिलीज पैराडाइम में कि सब जो है वो सारे ममालिक जो हैं वो सेल्फिश होते हैं, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान ने प्रूफ किया है कि आइडियलिज्म भी एग्जिस्ट करती है, पीस भी एग्जिस्ट करता है, और कैसे मिलिट्री लीडरशिप अगर सिंसियर हो, ऑब्जेक्टिव हो, फोकस्ड हो, स्ट्रक्चर्ड तरीके से लेके चल रही है तो कैसे उसके डिविडेंड्स भी आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी खबर है। और जो जैसे जनरल साहब भी जिक्र कर रहे थे कि लिबनान का जो जंगबंदी है जिसकी जो है उसकी जो रेफरेंस करते हुए, रेफरेंस देते हुए ईरानियन ने पोजीशन ली है, तो उनके डोमेस्टिक ऑडियंस भी खुश हो गए ईरानियंस के कि उन्होंने अपना हरमुज़ खोली है, तो लिबनान की वजह से खोली है, अपने मुस्लिम भाइयों की वजह से खोली है। एट द सेम टाइम अगर कोई हिकअप्स जो ड्राफ्टिंग में अभी कुछ अगर हैं भी जो लाइकली होते भी हैं किसी भी बड़े एग्रीमेंट को लिखने में या उसको साइन करने में, तो वो उसमें भी तेजी आ जाएगी। तो लिहाजा हर एक की सेंसिटिविटीज को एड्रेस हुआ, इट्स अ विन विन काइंड ऑफ सिचुएशन। एंड माय बिग सैल्यूट टू माय चीफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, माय पॉलिटिकल जो हमारी लीडरशिप है शहबाज शरीफ साहब को, सागदार साहब को, और जो हमारे सफीर सुफरा जो मुख्तलिफ कैपिटल्स में हैं, उन सबको मेरा सलूट और मुबारक हो तमाम दुनिया को कि जो रिसेशन को एक्सपेक्ट कर रही थी, जो थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात कर रही थी, जो आज रात को सिविलाइजेशन खत्म होने की बात कर रही थी, उन सबको जो है वो हमने बलाए ताक रखते हुए जिस तरह अपने किरदार अदा किया है। और स्पेशली फील्ड मार्शल ने, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि उनको किस तरह से उनको तहसीन और शुक्रिया अदा किया जाए। और अगर दुनिया में कोई अमन का कोई बड़ा टाइटल कोई हो सकता है तो उसके लिए सही मानों में हमारे फील्ड मार्शल साहब और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब उसको डिजर्व करते हैं। और इंटरनेशनल लेवल पे आप देखेंगे भी कि उनको एक्नॉलेज किया जाएगा। दोनों पूरी दुनिया उनके साथ खड़ी होगी। जिस तरह की स्टेटमेंट पाकिस्तान के लिए आ रही हैं, मैं समझता हूँ कि इसकी मिसाल माजी में तो कम से कम नहीं मिलती है। आने वाले दिनों के अंदर हम मजीद डिविडेंड्स, मजीद फवायद देखेंगे, पाकिस्तान के स्टेचर के ऊपर जाता हुआ देखेंगे, जिससे कि पाकिस्तान और हम सब मिलकर जो है उसको सेलिब्रेट भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। अच्छा बगैर साहब, ये भी कहिएगा कि अभी तो ये करंटली बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी खुशाइन बात है कि आपने हरमुज़ को खोल दिया गया है, लेकिन साथ ही ये भी कहना कि ये जो ओपनिंग है वो बकिया जंग बंदी की मुद्दत तक खुली रहेगी, और बहुत से अनासर ऐसे भी हैं जो कि नहीं चाहेंगे ये जंग बंदी जो हुई है लबनान में वो परमानेंट रहे। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें कोई चेंज भी आ सकता है, या ये ओपनिंग जो है वो इसमें डिसीजन जो लिया गया है वो रिवर्स भी हो सकती है इन केस खुदा न खास्ता? नहीं, मेरा ख्याल नहीं। बीइंग एन ऑप्टिमिस्ट मैं नहीं समझता कैसे होगा, क्योंकि जब फील्ड मार्शल साहब ईरान से तमाम उनकी पोजीशंस को या उनकी रेड लाइंस को या उनकी कंसेशन दिए जाने वाले एरियाज का सुन के उन्होंने जब अमेरिकन के साथ जो लाजमी को कन्वे किया होगा, तो उसमें लाजमी इतनी मुस्बत चीज़ें होंगी कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि फील्ड मार्शल से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पाकिस्तान की सालिसी की तारीफ की, और यहाँ तक कहा कि अगर एग्रीमेंट जो है वो बिल्कुल तैयार और उसको साइन करने के लिए वो पाकिस्तान भी जा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ईरानियंस के जो मैसेजेस हैं या उनकी रेड लाइंस, उनका एहतराम किया है अमेरिकन ने भी, और यही वजह है कि ये सब चीज़ें जो सब कर रही हैं। लेकिन यस, उसमें एक एलिमेंट जरूर है स्पॉयलर्स
और डिस्ट्रक्टर्स जो हैं वो पहले भी थे, अब भी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ दोनों अफ्रीकन अब बहुत समझदार हो चुके हैं, मजीद किसी प्रोंगलिविटी या लॉन्गिविटी ऑफ वॉर के पीछे नहीं जाएंगे, वो अभी यहाँ से इसको निकलना ही बेहतर समझेंगे। और दोनों के लिए बहुत सारे ऐसे भी अनासर रहे बीच में जिन्होंने अमेरिका को ऐसे पोर्ट्रे करने की कोशिश किया कि अमेरिका की जो पॉलिसी है वो अमेरिका फर्स्ट नहीं बल्कि इसराइल फर्स्ट की पॉलिसी पर अमेरिका कारबंद है। आपको लगता है कि लबनान जंगबंदी के साथ ही ये तासुर भी जो बनाया जा रहा था अमेरिका के हवाले से वो भी अब दम तोड़ चुका है? जी बिल्कुल, ये जो इसराइल फर्स्ट वाली बात थी, मेरे ख्याल में डीप स्टेट जो हमेशा से एक बड़ा असर रसूख रखती थी, स्पेशली ज़ोनस लाबी जो अमेरिका में है, उसको भी बहुत बड़ी जो है डस पहुंची ऐसे। और अब जिस तरह से पहले वो डिक्टेट किया करते थे अमेरिकन की फॉरेन पॉलिसी को, शायद उतने इफेक्टिव अब वो आने वाले दिनों में नहीं रहेंगे। और जिस तरह से वहाँ की डोमेस्टिक जो ऑडियंस है या उनके जो अमेरिकन हैं जो करोड़ों की तादाद में तकरीबन तमाम ही स्टेट से बाहर निकले, वो एक अनहोनी थी। और पहले भी मुजाहरे जरूर होते हैं अमेरिका के अंदर, लेकिन इस कदर ज्यादा, और वो भी इजरायली के खिलाफ और अपनी सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ, ये अनप्रेसिडेंटेड था। तो लिहाजा उनको भी अच्छी तरह से अंदाजा हो गया कि वॉर अमेरिकन की नहीं थी। एप्स्टीन फाइल्स का भी आप कह सकते हैं कि उसका भी प्रेशर था मुख्तलिफ क्वार्टर्स के ऊपर कि जिसकी वजह से ये हुआ। और उसकी वाज़ेह मिसाल पेंटागन इससे पीछे हटा हुआ, तो उनके चीफ आर्मी स्टाफ को फारिग किया गया, उनके 12 सीनियर जनरल्स को फारिग किया गया, FBI के हेड को फारिग किया गया, अटॉर्नी जनरल को फारिग किया गया। तो ये तमाम चीजें दिखा रही थी कि बहुत ज्यादा पोलराइजेशन है अमेरिकन सोसाइटी और पॉलिटिक्स के अंदर। और उन हालात में अमेरिका को रेस्क्यू करना, ये सिर्फ पाकिस्तान ही है जो ईरानियंस की भी सेंसिटिविटीज को मद्देनजर रखे कि स्पेशली उनके जब रहबर आजम को शहीद कर दिया जाए तो इसके बावजूद उनको मनाना और अमेरिकन को रेस्क्यू करना। आप देखिएगा कि ना सिर्फ रीजनल लेवल के ऊपर बल्कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान को सपोर्ट मिलने जा रही है, इसकी माजी में मिसाल जो नहीं मिलेगी। जितने हमारे माशी मसाइल थे, जितने हमारे सियासी, या हमें जो एक बदनाम किया जाता था इंडियंस की जानिब से, मेरे ख्याल में अब सबको लगाम डाली जाएगी। और जो टिल्ट साउथ एशिया में बुग़्ज़ चाइना के सिलसिले में इंडिया की तरफ था, अब पाकिस्तान सही मानों में नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पे उसके लेंस से देखा जाएगा। और पाकिस्तान के वक़्त में वक़ार में मज़ीद इजाफा होगा। और अब पूरी दुनिया, ये तो अमेरिका और ईरानियंस हैं जिनके मुतल्लिक मैं बात कर रहा हूँ, अब पूरी दुनिया में जैसे लीडरशिप जो है, जैसे उन्हें पाकिस्तान के मुतल्लिक स्टेटमेंट जारी की हैं, इसकी जो है वो जितने भी तारीफ की जाए कम है। तो लिहाजा आने वाले दिनों में लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक, पाकिस्तान का एक बेहतरीन फ्यूचर जो है वो हमारा इंतजार कर रहा हो। जैसे फील्ड मार्शल साहब ने फ्लोरिडा में कहा था कि पाकिस्तान तरक्की की राह पे अब हमारे पे डिपेंड करता है कि हमको किस स्पीड से तरक्की करवाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला वो हम 5th गियर में आ गए। अब हमारी जो सियासी क़यादत है और हमारी जो सियासी लीडर्स हैं और जितने ऑफिसर्स हैं, अब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना तेजी से तरक्की करते हैं। ठीक है, अच्छा ये भी कहेगा कि सिफारती कोशिशें पाकिस्तान की हैं जिसकी वजह से इस तरह की अहम डेवलपमेंट्स भी सामने आ रही हैं। ये सबसे बड़ा कंसर्न था अमेरिका का स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेकर। अब ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हल हो चुका है एक तरह से। इसके अलावा न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से जो सैंक्शंस रहीं, और गुज़श्ता रोज़ सदर ट्रम्प ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी कहा था कि ईरान यूरेनियम अफजोदगी के हवाले से भी बड़ा ऐलान कर सकता है और यूरेनियम हवालगी के हवाले से भी कोई ख़बर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा ऐलान भी कोई एक नया एक्सपेक्ट कर सकते हैं ईरान की जानिब से? बिल्कुल, मेरे ख्याल में जो पीस एग्रीमेंट होगा उसके अंदर लाजमी एक बड़ी चीज़ होगी। जो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस थे, उन्होंने सिर्फ न्यूक्लियर का जिक्र किया था इस्लामाबाद छोड़ने से पहले, लेकिन इसको माजी के हिसाब से अगर देखा जाए तो JCPO जो है ज्वाइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन 2015 में साइन किया था प्रेसिडेंट बाराक ओबामा ने और ईरान की एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ऑलरेडी ईरान ने इसके ऊपर जो है वो इत्तेफाक किया हुआ था कि वो न्यूक्लियर वेपन्स कभी भी बनाना नहीं चाहते और उससे दस्तबरदार भी थे। उन्होंने अपनी जो उसका हाईली एनरिच्ड यूरेनियम यानी 20% ज्यादा जो यूरेनियम थी जो कि वेपन ग्रेड स्टिल नहीं थी, वो भी उसको IAEA के हवाले कर दिया था। तो ईरान की जो खुलूस है विद रिगार्ड टू कि भाई उन्होंने न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने और वो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का हिस्सा भी है, तो वो उससे पहले भी तवक्को नहीं थी कि वो न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि इजराइलीज ने इसी का कवर लेते हुए जो है वो कहानी वो गढ़ते रहते हैं और इसके बदले वो ईरान के ऊपर जो है उन्होंने अमेरिकन को ही मजबूर किया, एप्स्टीन फाइल्स निकाली, जो पर्सनल लेवल के ऊपर प्रेशर बनाए, वो सब कुछ किया। लेकिन अब ईरान की जानिब से अब दोबारा से कहा गया, जब यहाँ पे इस्लामाबाद ने पिछले हफ्ते
نیگوسیشنز کر کے گئے تھے تب بھی انہوں نے پوزیشن لی تھی کہ نہ ہمارا ماضی میں کوئی خیال تھا کہ ہم اس کو کوئی نیوکلیر ویپن بنانے کا، نہ اب ہے. تو لہٰذا وہ تو آلریڈی ان کی ڈکلیئرڈ پوزیشن ہے. اب اپنائے ہرمز جو ہے بیسیکلی یہ اب سینسیٹیو پوائنٹ بنا ہوا تھا، ایگوسٹک ایک پوزیشن تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کہ میری وجہ سے یا اس جنگ کی وجہ سے یہ بند ہو گیا، اور پوری دنیا ان کی جو اسپیشلی نیٹو کنٹریز تھے، یورپین یونین تھے، فار دیٹ میٹر کوڈ یا ایسٹ ایشیا، وہ تمام جو ہے وہ الزام ٹھہرا رہے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو.